Standard 7, Subject English, Chapter number 1, Section 3, The Bridge Builder. In the previous video, we just completed the exercise in text related. Now, we just move forward for the new exercise, new section 3, the bridge builder. First of all, write down the hard words, meaning the first one, highway, a main road, for traveling, long distances, highway meaning a main road for traveling long distances. Next one, chance, pronounced Kazim, a deep opening in the ground, a deep opening in the ground, chance, a pronounced Kazim, a deep opening in the ground. मतलब कि ये चांस जो है वो प्रोनाउंस्ड है कज़िम का, a deep opening in the ground, मतलब कि ग्राउंड में हम कुछ ढूंढते हैं, मतलब कि कुछ खुदाई करके जो मिलता है, a deep opening in the ground, इसके बारे में बात की है. And highway means you know very well what is the highway, a main road for traveling long distances. मतलब कि अगर आप किसी स्ट्रीट में रह रहे तो उससे हाईवे ज़्यादा दूर होगा, जिससे नेशनल हाईवे भी कहा जाता है. मतलब कि यहाँ से हम राजकोट का जो हाईवे वो इजीली देख सकते हैं. यू कैन इजीली सी दैट द हाईवे ऑफ राजकोट. देन दिस इज द हाईवे. देन chasm, pronounced chasm, a deep opening in the ground. Third one, Suletai. Means here, मतलब कि in this poem here the meaning of dark and unpleasant stream, मतलब कि ये जो सुलेटाइड है इन दिस पोयम, यहाँ पे उसका मीनिंग क्या है? डार्क और अनप्लीजेंट स्ट्रीम यानी एक झरने के बारे में बात की गई है. इन दिस फ्लो ऑफ रिवर, डार्क एंड अनप्लीजेंट स्ट्रीम. फोर्थ वन, ट्वाइलाइट. Meaning the time after the sun. The time after the sun. The time after the sun has set. Sun has set, and before it gets
completely dark. It gets completely dark. ट्वाइलाइट यानी ट्वाइलाइट का मीनिंग क्या है? द टाइम आफ्टर द सन हैज सेट, मतलब कि सनसेट के बारे में, जो सनसेट का जो टाइम होता है उसके बारे में, द टाइम आफ्टर द सन हैज सेट बिफोर इट गेट्स कंप्लीटली डार्क, मतलब कि इन द मिडनाइट कह सकते हैं, मिडनाइट तो नहीं पर हम इसे इवनिंग कह सकते हैं, मतलब कि कंप्लीटली डार्क, मतलब कि पूरा अंधेरा छा जाने के बाद, जब सूर्यास्त अस्त हो जाने के बाद पूरा जो अंधा मतलब कि अंधकार जो छा जाता है उसके बारे में बात की है ट्वाइलाइट। फिफ्थ वन, span the tide. Span the tide. Span the tide. Meaning, in this poem here, build a bridge. Build a bridge. Build a bridge. Stretching. Stretching. Right across. Right across. Right across. Right across the street. Right across the street. The street from one side to the other. From one side to the other. To the other. Span the tide. In this poem, the here span the tide meaning is build a bridge. मतलब कि आपको पता होगा कि ब्रिज हम किस लिए बनाते हैं, तो in this case here this is tree, here this is land, and here also land. Make a bridge over there, one side to another, like this. Build a bridge stretch right across the stream from one side to the another. मतलब कि हम ब्रिज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जिसमें बीच में क्या होती है, मतलब कि एक स्ट्रीम, मतलब कि कोई रिवर होती है, उसका फ्लो जो है वो बीच में से जाता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, मतलब कि एक पुल बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, sixth one, pilgrim. Pilgrim meaning is here in this poem, meaning pilgrim is traveler. Next one, as not to me, as not to me means nothing to me, means nothing to me, मतलब कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, nothing to me. Next one, eighth one, pitfall. Pitfall. Here the meaning is a danger or difficult. A danger or difficulty. Difficulty, especially one that cannot be noticed easily.
दो मीनिंग है यहाँ पे, डेंजर और डिफिकल्टी, और जो दूसरा मीनिंग है वो स्पेशली वन that cannot be noticed easily. मतलब कि pitfall यानी इसके दो मीनिंग है, फर्स्ट वन डेंजर और डिफिकल्टी, और दूसरा मीनिंग है स्पेशली वन दैट कैन नॉट बी नोटिस इजीली, मतलब कि इतनी आसानी से सबके नोटिस में आता नहीं है, उससे हम क्या कहते हैं, pitfall भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन मीनिंग इन योर बुक, देन फर्दर मूविंग our next poem, Bridge, the Bridge Builder. We will start. Okay student, have you done this? Then move forward for our new poem, The Bridge Builder. As a wise person said, without a sin of caring, this can be no sense of community. Here ends inspiring poem about a person who truly cares for others. मतलब कि एक सबसे चतुर व्यक्ति है, उसने कहा था एज अ वाइज पर्सन सेड विदाउट अ सेंस ऑफ केयरिंग, मतलब कि दूसरों की फीलिंग्स को समझे बिना, देयर कैन बी नो सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब कि हमें संपर्क में लाने की कोई भी हमारे पास क्षमता, मतलब कि कोई भी हमारे पास एबिलिटी नहीं है। हियर इज एन इंस्पायरिंग पोएम, मतलब कि सबको इंस्पायर करने के लिए एक पोएम है अबाउट अ पर्सन, मतलब कि उस पर्सन के बारे में who truly cares for others, मतलब कि दूसरों की केयर करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट। एन ओल्ड मैन गोइंग अलोन हाईवे, मतलब कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब कि एक वृद्ध व्यक्ति जो था वो चल रहा था। ओल्ड मैन गोइंग अलोन हाईवे, अलोन हाईवे मीन्स अ मेन रोड फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि अपने गांव से दूर, जहां से एक शहर से दूसरे शहर के जाने के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस रोड जो होता है उसे क्या कहते हैं, हाईवे किया जाता है। मतलब कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो हाईवे पर जा रहा था। कैम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, मतलब कि जब वहां तक पहुंचे तब एट द इवनिंग कोल्ड, मतलब कि उसका जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, काफी ठंडा था। एंड ग्रे, मतलब कि बारिश का समय भी हो गया था, मतलब कि काफी अंधेरा भी छाया हुआ था। टू अ केसम वेस्ट, मतलब कि केसम वेस्ट यानी प्रोनाउंस काजिम,
a deep opening in the ground, मतलब कि वो खुदाई करना शुरू करता है. A deep opening in the ground and deep मतलब कि वो मतलब कि ये खुदाई करता ही जा रहा है, खुदाई करता ही जा रहा है. एंड वाइड मतलब कि पहले जो है वो काफी अंदर तक खुदाई करता है, फिर उसे वाइड मतलब कि पौड़ाई में भी खुदाई करता है. थ्रो which was flowing a Sulan tide. Here the Sulan tide means dark and unpleasant stream. मतलब कि पानी का जो बहाव है वो बहने लगता है. Through which is flowing a Sulan tide. You can see the picture of page number 27. Here this is the old man person, and he started a deep opening in the ground and deep and wide, through which was flowing a Sudan tide. मतलब कि एक जो नदी है वो बहने लगती है. Dark and unpleasant stream मतलब कि river. The old man crossed into twilight deep. मतलब कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अक्रॉस टू द ट्वाइलाइट. मतलब कि यहाँ पे ट्वाइलाइट का जो मीनिंग है वो क्या है? द टाइम आफ्टर द सन हैज सेट बिफोर इट गेट्स कंप्लीटली डार्क. मतलब कि सूर्यास्त होने वाला था जबकि कंप्लीटली डार्क ना हो जाए तब का समय था, मतलब कि इवनिंग का टाइम था. Did the Sulan stream had no fear for him. मतलब कि ये जो व्यक्ति है वो अंधेरे से डरता नहीं था. भले ही न क्यों अंधेरा हो जाए वो अपना काम जो है वो शुरू रखता है. But he turned when safe on the other side. मतलब कि जब वो दूसरी साइड पहुंचने के बारे में सोच रहा था. And built a bridge to span the tide. मतलब कि वो दूसरी जगह पे here to span the tide meaning क्या है? This poem here built a bridge stretched right across the stream from one side to other. मतलब कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इस लैंड से दूसरी लैंड की जगह बीच में से जो रिवर है उसको पार करने के लिए ये जो वृद्ध मतलब कि ओल्ड मैन है उसने क्या बनाया? ब्रिज बनाया. ओल्ड मैन से अ फॉलो पिलग्रिम. मतलब कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो कह रहा है और ओल्ड मैन से फेलो पिलग्रिम. पिलग्रिम मींस इन द हियर इन दिस पोएम मीनिंग इज ट्रैवलर. मतलब कि ओल्ड मैन कहता है कि ये जो ब्रिज उसने बनाया है वो खुद के लिए नहीं बनाया, दूसरों के लिए बनाया है ताकि वो जो है इस गांव से दूसरे गांव मतलब कि ट्रैवलर जो है वो मूव कर सके, इसीलिए उसने ब्रिज बनाया. You are wasting your strength and build here. Your journey will end with the ending day. मतलब कि दूसरे लोग जो है वो उससे कहते हैं कि you are wasting your strength. मतलब कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसको तुम वेस्ट कर रहे हो. एंड बिल्डिंग हियर विथ बिल्डिंग हियर मतलब कि ये जो तुम पुल बना रहे हो, ये जो ब्रिज बना रहे हो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ का वेस्ट हो रहा है. योर जर्नी विल एंड विथ द एंडिंग डे. मतलब कि तुम तो कभी भी मर सकते हो. मतलब कि तुम्हारी इस एज तो काफी वृद्ध व्यक्ति लग रहे हो. मतलब कि यू आर गेटिंग ओल्ड. यू नेवर अगेन विल पास दिस वे. मतलब कि तुम्हारे लिए तो ये किसी काम का नहीं है. यू हैव अक्रॉस द चेन्स डीप एंड वाइड व्हाइल बिल्डिंग दिस ब्रिज एज इवनिंग टाइड. मतलब कि तुम तो कभी इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले नहीं हो, तो फिर ये तुम ब्रिज क्यों बना रहे हो इवनिंग टाइड. मतलब कि ये अंधेरे में ब्रिज क्यों बना रहे हो. द बिल्डर लिफ्टेड हिज ओल्ड ग्रे हेड. मतलब कि वो काफी जो व्यक्ति ने मतलब कि इस व्यक्ति ने जो पुल बनाया था वो कह रहा है गुड फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम ही सेड देयर फॉलोड आफ्टर मी टुडे. मतलब कि ये जो फ्रेंड है मतलब कि उसके सामने जो ये दलील कर रहा है जो पोएटर के सामने, वो पोएट मतलब कि पोएटर कहते हैं गुड फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम. मतलब कि मैं जो
ये डायरेक्शन से जो आया हूँ वहाँ से सभी लोग आएंगे। दे फॉलो आफ्टर मी टुडे, मतलब कि मेरा जो है वो क्या करेंगे, मेरे को फॉलो करेंगे। अ यूथ whose feet must pass this way, this chasm, means chasms यानी a deep opening in the ground that has been a not to me, मतलब कि मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। At that fair head earth में a pitfall be, मतलब कि pitfall यानी क्या कहते हैं, means pitfall means a danger for difficult, especially one that cannot be noticed easily, मतलब कि मेरे लिए ये लोग जो है वो इतनी आसानी से नोटिस करेंगे नहीं। He too must cross in the twilight dim, मतलब कि ट्विलाइट का टाइम हमें क्या मीनिंग है, तो सनसेट के बाद का टाइम, मतलब कि पूरा कंप्लीटली डार्क ना हो जाए इसके पहले का टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। गुड फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, मतलब कि जो ये ट्रैवलर्स है वो अंधेरे में मूव कर सके इसके लिए ये जो ब्रिज है वो इस व्यक्ति ने बनाया था। विल एलन ड्रॉम्बले, उसने ये पोयम लिखी है, मतलब कि फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। इन दिस स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी, द ब्रिज बिल्डर। ये जो ब्रिज बिल्डर है वो काफी ओल्ड एज का व्यक्ति है, मतलब कि वो काफी वृद्ध व्यक्ति है। उसने एक दिन हाईवे से जाकर उसने खुदाई करना शुरू किया, अ डीप ओपनिंग इन द ग्राउंड। फिर वो खुदाई करता ही गया और उसमें इतना बड़ा, मतलब कि वहां से नदी गुजरना शुरू हो गया, रिवर। फिर उसने जब ट्वाइलाइट, मतलब कि जब सुलेन टाइप के, जब उसको अंधेरे से कोई भी डर लगता नहीं था, फिर उसने एक ब्रिज बनाया। फिर एक पर्सन आता है जो उसे कहता है कि ये तुम अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो, तुम तो कभी भी मर सकते हो, तो फिर ये जो ब्रिज है वो क्यों बना रहे हो। तो पोएटर से वो उस फ्रेंड को कहते हैं कि ये जो मैं पुल बना रहा हूँ ये दूसरों के लिए बना रहा हूँ, ताकि जब भी कोई ट्रैवलर्स हो, मतलब कि कोई मुसाफिर व्यक्ति हो, उसको कभी भी डार्क, मतलब कि शाम को आने में तकलीफ ना हो। ओके स्टूडेंट, हियर और योर poem is complete. Then with exercise in next video Okay, student, have you done this? Then now let's the question answer. अगर पोयम को आपने कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो इन व्हाट्सएप ग्रुप। The first question is, the title of the unit is caring for other. How is this poem reflection of the title? मतलब कि ये जो आपको
पोएम का जो टाइटल दिया गया है केयरिंग फॉर अदर्स, ये कैसे सुटेबल हो रहा है, देन लेट्स डिस्कस। Write this answer. This poem is a true reflection of caring for others, मतलब कि दूसरों की सहायता के लिए ही पोएट्स ने ये जो पोएम बनाया था। because even after the old man crosses the swift moving river, he decided to build a bridge. When follow traveler comes along and ask him why he was building a bridge if he had already crossed the old man tells him that it would be kind and unselfish to build a safer way for others to get across the water, Okay student, first of all write down in your book, then move forward in our next video. What is your homework? Your homework is write the meaning in your English book. Okay student,
you must be write down in your English book. Okay, student. Okay, student, have you done this? We will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day.